Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, you know that we have completed the 3 chapters of our book and today we are going to start chapter 4 and the name of the chapter is Air. So, you know what that our atmosphere is consist of different types of gases which with the with the combination of water vapor and humidity along with those gases forms the air. So now we will see the chapter and we'll start with the content reading and the explanation. The name of the chapter is Air. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called as atmosphere. As you know that the earth is surrounded by different types of layer in which the layer which is nearest to the earth's surface is atmosphere, which consists of different types of gases. All living being on this earth depends on the atmosphere for their survival. The living beings which are present on the earth's surface are dependent on the atmosphere for their survival because they obtain different things, food and the air we breathe, water, all these things are present in our surrounding, and that is none other than the atmosphere. It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun rays. This atmosphere provides us the air, the oxygen we breathe, and it also protects us from harmful effect of sun rays. You know that the sun radiates different types of radiations that can harm us. So this layers of atmosphere prevent us from the sun's harmful rays. Okay, without this blanket of protection we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. If this atmosphere is not present, suppose the atmosphere is not present beside us, then what the condition will be? In the daytime the sun's hotness will create a huge effect. So what it will result? It will result the baked condition. That means जो चीज़ें बेक हो जाती हैं, पक जाती हैं, कुछ उस जल जाती हैं, उस तरह की कंडीशन हमारी हो सकती है. इवन इन द नाइट the things, the person, the atmosphere, the surrounding will be frozen if this atmosphere will not be present. So ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये हमें प्रिवेंट करती हैं और हमारे लिए सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं जिससे हम अर्थ सरफेस पे सर्वाइव कर पाएँ. ठीक है. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल. कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, ये ही एक रीज़न है जो अर्थ पे टेम्परेचर को मेंटेन किए रहती है, जिससे अर्थ पे रहना पॉसिबल है. Composition of the atmosphere. First thing is that the atmosphere consists of different types of gases. I have already told you that this atmosphere consists of different types of air gases which form the composition in different percentage. Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? You know that the air we breathe, the oxygen which we breathe is not pure. प्योर ऑक्सीजन वो नहीं होता, उसमें बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती हैं. ऐसा आप सोचिए कि आप जो ब्रीथिंग करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आपके अंदर जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है. बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एक साथ मिली हुई होती है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम इनहेल करते हैं. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज. और दोज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, argon and hydrogen, they are found in the lesser quantities.
Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. इन गैसों के अलावा भी हमारे एटमॉस्फेयर में टीनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं. वो बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए वो हवा में उड़ते रहते हैं. द पाई चार्ट गिव्स यू द percentage of different constituent of air. Here you can see there is a pie chart which resembles the percentage of air inside our atmosphere. You know that nitrogen is 78%, oxygen is 21%, carbon dioxide is 0.03%, argon 0.93, and all other gases are 0.04%. Okay. नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. जो नाइट्रोजन है वो सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में. व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट. क्या होता है, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी लेते हैं, लेकिन हमारी लंग्स उसको वापस से बाहर भेज देती है विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन को भी वापस भेज देती है. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. बट द प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल बिकॉज इट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट नाइट्रोजन का होता है, इसलिए ये प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है. ठीक है, क्योंकि प्रोटीन से ही जो ग्रोथ होती है किसी भी चीज़ की वो प्रोटीन के वजह से ही पॉसिबल है. नाउ here is a box in which there is a written, do you know there is a content based on the global warming and greenhouse effect. Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiation from the earth. कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है वो क्या करता है, एक सपोज ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, तो इसने क्या किया, एक लेयर बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के चारों तरफ, जो एक परत, एक शीशे का काम करता है. ऐसा कह लो आप, एक ऐसी परत हो जाती है जो शीशे का काम करती है, जिसके अंदर गर्माहट एक बार अंदर घुस गई, मतलब हीट एक बार अंदर घुस गई, तो वो हीट क्या करती है, बाहर नहीं निकल पाती है. और उस कंडीशन में जो ये सरफेस होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है. तो क्या होता है, जब ये शीशे नुमा या हार्ड एक स्ट्रक्चर या आप कह सकते हो एक लेयर बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका मतलब कि एक बार इसके अंदर अर्थ है, अर्थ सरफेस, इसके जो किनारे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन गई है, इसके अंदर अब एक बार अगर हीट चली गई तो दोबारा इससे बाहर सारी की सारी हीट नहीं जा पाती है. उस कंडीशन में ये ग्रीन हाउस बन जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करने लगता है. और फर्दर टेम्परेचर जो सरफेस पे और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होती है. सो लेट अस रीड द कंटेंट नाउ. Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiation from the sun. It is therefore called a greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in. कह रहा है ये जो ग्रीन हाउस है इसमें भी दो कंडीशन होती है. ग्रीन हाउस हार्मफुल भी हो सकता है, यूज़फुल तो है ही है. क्यों? क्योंकि सपोज ये अर्थ है आपका, यहाँ पे सन है, ठीक है, सन से क्या हुआ, जो सन रेज हैं वो निकली और अर्थ के सरफेस पे सारा दिन 12 घंटे, सपोज 10 घंटे सन रेज यहाँ पे रेडिएट हो रही हैं. क्या हो गया, अभी रात का टाइम होने वाला है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है उसने क्या किया, जो हीट रेडिएशंस थी उसको ट्रैप कर लिया अपने अंदर और ज़्यादा अमाउंट में हीट बाहर नहीं निकल पाई. तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर बन गया अर्थ के अगर चारों तरफ, जो थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा वो गर्म है वो एटमॉस्फेयर, जो गर्माहट बना करके रखता है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिससे जीवन अच्छे से सुचारू रूप से चल सके. अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट को या रेडिएशंस को ट्रैप ना करे, उस कंडीशन में हीट नहीं रहेगा एटमॉस्फेयर में और
एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा जो हमारे रहने योग्य नहीं होगा। इसलिए ये ग्रीन हाउस की कंडीशन हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन बढ़ती गर्मी की वजह से और जो ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन की वजह से रेडिएशंस इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे अर्थ सरफेस में रह जाती हैं, एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, जो नुकसान भी कॉज करता है। क्या होता है, वाटर बॉडीज़ गर्म हो जाती है, उनके अंदर जीव की डेथ होने लगती है। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी अकर होता है जो हमारे लिए हार्मफुल है। बट ग्रीन हाउस जो कंडीशन है वो यही है कि ग्रीन हाउस के वजह से, इस कंडीशन के वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर मेंटेन रहता है जो सुटेबल है सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है। However, when its level in atmosphere increases due to factory smoke और कार फ्यूम्स, कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो एयर था, जो एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन क्या होता है, जो फैक्ट्री के स्मोक हैं, कार के फ्यूम्स हैं, या बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उन सब से निकला हुआ जो गर्माहट होती है, हीट होती है, वो क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है। और उसके वजह से एक टेम्परेचर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट मेंटेन कर रहा है वो तो है ही है, उसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल हीट हमने पैदा कर दी है, इसके वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में अर्थ के सरफेस पे या वाटर बॉडीज़ में जीव की डेथ होने लगती है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है, जो पॉल्यूटेंट का काम करता है, जो हमारे जो जीव हैं, जो टाइप ऑफ हैबिटेट रहते हैं अर्थ के सरफेस पे, उनके लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है। और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। ये जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, जब टेम्परेचर राइज कर जाता है नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों मेथड के द्वारा, इस कंडीशन में जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं, और उसके वजह से जो वाटर का लेवल होता है या जो समुद्र है उनका जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाढ़, जो नदी के तट होती हैं उनमें जल जमा, वहाँ पे भारी मात्रा में बाढ़ की कंडीशन आ जाती है। और इसके वजह से क्लाइमेट के चेंजेस भी देखे जाते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस काफ़ी होते हैं, और जिसके वजह से हमारा जो हैबिटेट है, हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्लांट है, एनिमल है, इनको भी हार्म होता है। तो इसलिए एक लिमिट में जो रेडिएशंस हैं वो एटमॉस्फेयर में रहें तो अच्छा है, उससे ज़्यादा जब होने लगता है तो वो हमारे लिए नुकसान ही कॉज करता है। ठीक है। नाउ I have in the content reading we were there, but plant need nitrogen for the survival. I have told you that the plant need the nitrogen because it is the main constituent of protein. So those plant need nitrogen for their survival. They cannot take nitrogen directly from the air. जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं लेते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है वो फ्री नाइट्रोजन नहीं होता। नाइट्रोजन डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ मिक्सड अप होता है। तो उसके लिए जब प्लांट को अगर नाइट्रोजन लेना है तो वो क्या करता है, बहुत सारी बैक्टीरियाज वगैरह का हेल्प लेता है जो उसके रूट्स में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, बहुत टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो उस नाइट्रोजन को, जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है, उसकी फिक्सिंग करते हैं, जिससे फ्री नाइट्रोजन प्लांट को मिल पाए। Some plants take nitrogen from the air and change its form so that plant can use it. हाँ, तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया जो रहती हैं रूट में, सॉयल में, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनके फॉर्म को चेंज करते हैं, जिससे प्लांट उसको यूज़ कर पाए। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन है जो पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ह्यूमन और एनिमल्स ये क्या है, ये ऑक्सीजन को लेते हैं ब्रीथिंग के लिए। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फूड प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है,
उस दौरान ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं कौन? ग्रीन प्लांट्स। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। और इस तरह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं और एनिमल्स ले रहे हैं ऑक्सीजन को। तो क्या होता है, इससे एक इक्विलिब्रियम बना रहता है, कांस्टेंट कंडीशन बनी रहती है। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। अगर हम प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएं, पेड़ की कटाई करें, फॉरेस्ट का क्षरण करें, ऐसे कंडीशन में ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है, क्योंकि जब ग्रीन प्लांट्स को फूड का प्रोडक्शन करना होता है तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और फूड का प्रोडक्शन करेंगे, फर्दर वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेंगे। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है। ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन और एनिमल जो हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज by human or animal seems to be equal to the amount used by the plant which make a perfect balance। कह रहा है कि प्लांट्स का ऑक्सीजन पैदा करना या कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, वहीं पे एनिमल का ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस, एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस बना के रखता है इन गैसों के प्रेजेंस में। However, the balance is upset by burning of fuel। क्या होता है कि ये बैलेंस तो बना हुआ होता है, लेकिन जब हम फ्यूल जलाते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जब हम जलाते हैं, उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होने लगती है। ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, जिसके वजह से एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस जो है वो बिगड़ने लगता है। कोयला हुआ, तेल हुआ, जो पेट्रोलियम हुआ, इन सब का यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान कॉज करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। कह रहा है कि ये जो कोयला है, तेल है, इन सबको जलाना या इन सबको यूज़ करना ये थोड़ा नुकसानदायक है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करता है, जो एटमॉस्फेयर के लिए नुकसानदायक है। हर साल बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो जाता है, सिक्रेशन हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ये हमारे अर्थ के वेदर के लिए और क्लाइमेट के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। नाउ डू यू नो व्हेन एयर इज़ हीटेड इट एक्सपैंड्स, बिकम लाइटर एंड गोज़ अप। कह रहा है कि जब हवा गर्म होती है या हीट होती है, उस कंडीशन में वो फैलती है, फैलने पे उसका वज़न जो होता है, भार जो होता है वो कम होता है और वो उठ करके ऊपर जाती है। कोल्ड एयर इज़ डेंसर। और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, हैवी होती है और वो नीचे की तरफ जाती है। When hot air rises, cold air from the surrounding area rushes there to fill in the gap. That is how the air circulation takes place। क्या होता है, सपोज ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे ये एयर प्रेजेंट है यहाँ पे सपोज, तो क्या हुआ, सन रेज है यहाँ पे, सन की रेज आई, तो ये जो यहाँ पर पड़ी, यहाँ पे सन रेज पड़ रही हैं, होता क्या है इस कंडीशन में कि जहाँ पे सन रेज पड़ती हैं यहाँ की जो हवा है वो गर्म होने लगती है, और गर्म होने के बाद हवा हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है, यहाँ चली आती है। वहीं पे ऊपर की हवा ठंडी होती है और भारी होती है, वो मूव करते हुए नीचे चली आती है। नीचे की हवा ऊपर गई गर्म होकर के, हल्की होकर के, और ऊपर की हवा जो ठंडी थी वो नीचे आती है। फिर ये जो नीचे हवा आई, फिर ये इस पर हीट पड़ा, ये गर्म हुई, फिर ये ऊपर गई, और जो पहले से ऊपर हवा गई थी वो ठंडी होकर के नीचे आई। तो इस तरह से एयर के सर्कुलेशन भी होता रहता है, ठीक। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर।
In this we will discuss about the layers of atmosphere that we will discuss in the next lecture. So that's all for today. Thank you everyone.